So today we will discuss about the types of acids upon the basis of their concentration and their strength. So first we will talk about the strength of acids. So what is the meaning of strength of an acid? So the strength of an acid refers to the ease with each acid loses a proton. That means actually the strength of an acid simply means the comfortability of an acid to give its proton in the solution. यानी जितनी आसानी से आपका एसिड वाटर में प्रोटॉन को रिलीज करेगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी. तो स्ट्रेंथ के बेस पे एसिड दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. सो व्हाट आर strong acids? So a strong acid is the one which ionizes completely in an aqueous solution by losing one proton. That means the strong acid वो acid होते हैं जो aqueous solution में पूरी तरह से completely अपने constituent ions में break हो जाते हैं और easily आपको हाइड्रोजन आयन अवेलेबल कराते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, suppose that you have the acid Ha and it is giving you H plus and A minus. So जहाँ पे Ha क्या है आपका, it is a protonated acid. ठीक है. H plus क्या है, it is your free acidic proton and A minus क्या है, it is your conjugate base. So एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो हमेशा वीक कॉन्जुगेट बेस ही देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में. व्हाट आर द कॉन्जुगेट बेसिस वी विल स्टडी इन क्लास 11. अभी के इसको छोड़ देते हैं. ठीक है. तो आपके जो कुछ एसिड्स हैं जिस लाइक योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड्स, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, परक्लोरिक एसिड, hydrobromic acid, hydroiodic acid. These are known as strong acids because they will dissociate completely into the aqueous medium. So mostly the mineral acids are strong acids and organic acids are generally weak acids. Okay. So due to complete dissociation of strong acids in aqueous solution, the concentration of hydronium ions in the water is equal to the total concentration of the acid introduced to the solution. इसका मीनिंग ये है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उस एक्वस सॉल्यूशन में जितने आपके प्रोटॉन होंगे उतने ही आपके हाइड्रोनियम आयन होंगे. ठीक है. सो नाउ व्हाट आर वीक एसिड्स? A weak acid is the one which ionizes partially in the solution. So it means that a weak acid does not donate all of its hydrogen ions in a solution. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपके वीक एसिड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते. ठीक है. वो पार्शियली ब्रेक होते हैं क्योंकि जब इनके मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन आयन रिमूव होता है तो कुछ टाइम बाद वो वापस जो हाइड्रोजन आयन है वो वापस मॉलिक्यूल से अटैच हो जाता है. सो बिकॉज द हाइड्रोजन आयन इज नॉट completely free from its acid molecule, that's why it is not available in very good amount. तो बहुत कम ही हाइड्रोजन आयन्स हैं जो कि फ्री हो पाते हैं
in the aqueous medium. Rest are tried to be the part of their parent molecule. Okay. So it is a surprising fact for you that majority of the acids are actually weak in nature. यानी जितने भी एसिड्स हम जानते हैं आज तक, उसमें जो मैक्सिमम एसिड्स हैं वो वीक होते हैं नेचर में, एंड ओनली अबाउट 1% of a weak acid solution dissociate in water in a 0.1 mole liter solution. यानी अगर आपके पास 0.1 मोलर सोल्यूशन है, उसमें सिर्फ आपका जो वीक एसिड है सिर्फ 1% जो है वो ब्रेक होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में. So we can represent the dissociation of a weak acid by the following equation: Ha giving you H plus and A minus. बट देखिए इनके बीच जो सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ इक्विलिब्रियम. अगर ये जो आपका एसिड मॉलिक्यूल है अगर एक कंप्लीटली ब्रेक हो रहा होता तो इसमें हम क्या दिखाते हैं, एक स्ट्रेट एरो. बट बिकॉज देयर इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन द हाइड्रोजन between the hydrogen ions and the conjugate base and the parent acid molecule. ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी स्पीड से आपका जो एसिड मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो रहा है, उतनी ही स्पीड से जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं उस मॉलिक्यूल के वापस कंबाइन होके उस एसिड मॉलिक्यूल को दोबारा बना रहे हैं. So because of this condition, hydrogen ions are not available freely in the solution. तो आपके जो weak acids हैं उनमें सबसे common examples हैं आपके acetic acid which is present in your vinegar, formic acid which is present in the sting of your ants, and third is your oxalic acid which is present in your tomatoes. Okay, so all these three are weak acids. Almost all the organic acids we know are actually weak in nature. Okay, so here I have shown the dissociation of acetic acid, formic acid and oxalic acid. So when the acetic acid molecule breaks, it will give you acetate ion and proton. The formic acid when break down, it will give you formate ion and हाइड्रोजन आयन. अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही होगी इन द केस ऑफ फॉर्मिक एसिड, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो H आयन एक ही क्यों. एक्चुअली जो आपके ऑर्गेनिक एसिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं जनरली उनमें जो प्रोटॉन होता है वो एक्चुअली अटैच होता है विद द ऑक्सीजन. अगर आपके एसिड मॉलिक्यूल में अगर जो हाइड्रोजन एटम है अगर वो डायरेक्टली कार्बन से बॉन्डेड है, तो क्योंकि जो हाइड्रोजन है जब वो कार्बन से बॉन्डेड होता है तो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये बॉन्ड जो है वो वाटर में ब्रेक नहीं होता, इसलिए ये प्रोटॉन फॉर्म नहीं करता. ठीक है, एंड व्हेन योर ऑक्सैलिक एसिड so when oxalic acid molecule ionizes, it will give you oxalate ion and 2 protons. Okay, now we will talk about the concentration of acids. So first of all we must know that what is concentration. So concentration is the amount of solute, that something which dissolves, and that is dissolved in a certain amount of solvent. ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज एसिड कॉन्सेंट्रेशन. सो इट इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ अवेलेबल एसिड आयंस डिजॉल्व इन द सॉल्ट. तो हमें इससे मालूम पड़ता है कि कितना अमाउंट ऑफ एसिड जो है वो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व है. और
कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए हम बहुत सारे यूनिट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि मोल्स, पार्ट्स पर मिलियन और परसेंटेज। ठीक है, सो परसेंटेज इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू express the concentration of an acid. Okay, so in short, you can say that concentration is the ratio of solute to solvent content of a solution. Okay, so upon the basis of concentration, we have two types of acids. One is called concentrated acids and second is called diluted acid. Okay, so what are concentrated acids? So they are those acids which contain high concentration of hydrogen ions in the aqueous solution. ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयंस का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, जिसे अगर हम एग्जांपल लें स्टैंडर्ड कंसंट्रेटेड एसिड का, तो जो आपका स्टैंडर्ड एसिड होता है ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट हैज़ कंसंट्रेशन अबाउट 98.3%। तो अगर सपोज दैट आपके पास 1 लीटर स्टैंडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसमें कितना अमाउंट होगा आपके सल्फ्यूरिक एसिड का? इट विल बी 983 ml H2SO4 होगा और 17 ml क्या होगा? आपका वाटर होगा। सो हेयर द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज हायर देन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं दैट the concentrated acids are those which have large amount of acid per unit volume. Okay, now we will talk about dilute acids. So dilute acids are those which have a small amount of acid per unit volume. यानी dilute acid वो एसिड होते हैं जिनमें एसिड का जो अमाउंट है वो पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं 5% HCl का। मान लीजिए आपके लैब में HCl की एक बोतल रखी है, उसमें लिखा है 5% HCl। तो इसका मतलब ये है कि आपके बोतल में जो एसिड है उसका कंसंट्रेशन 5% है। मान लीजिए आपके पास वो एसिड 100 ml है बोतल में, तो 100 ml HCl सोल्यूशन अगर आपके पास है तो इसका मीनिंग क्या होगा कि उसमें 5 ml क्या है? 5 ml आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और 95 ml क्या है? वाटर है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट अमाउंट ऑफ सोल्यूट यानी एसिड इज वेरी लो एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट। ठीक है, तो इससे एक चीज़ क्लियर हुई कि जो डाइल्यूट एसिड होते हैं उसमें एसिड कम होता है और वाटर ज़्यादा होता है, इन वेरी सिंपल। ठीक है, नाउ एग्जांपल नंबर 2, सपोज दैट इन द लैब यू हैव अ बॉटल ऑफ नाइट्रिक एसिड विच कंटेन्स 2% ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके बॉटल में जो एसिड है उसका कंसंट्रेशन कितना है? 2%। तो मान लीजिए आपने उस बॉटल से 100 ml नाइट्रिक एसिड ले लिया, तो अगर आपके पास 100 ml नाइट्रिक एसिड है तो उसमें कितना अमाउंट होगा नाइट्रिक एसिड का? इट विल बी 2 ml एंड रेस्ट इज योर वाटर विच हैज अमाउंट ऑफ 98 ml। तो इससे भी ये चीज़ क्लियर हो गया कि द अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज वेरी लो एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, सो कंक्लूजन ये हुआ कि जो आपके डाइल्यूट एसिड होते हैं उन एसिड्स में एसिड कम होता है, वाटर ज़्यादा होता है, और जो आपके कॉन्क एसिड होते हैं वहाँ पे वाटर कम होता है और एसिड ज़्यादा होता है। ठीक, क्लियर?
So I hope you got the concept of weak acid, a strong acid, and dilute acid and concentrated acid. Okay. So next time we will discuss about the reactivity of your acids with other chemical species. Okay. Thank you so much.